Even though I started in my 20s, I understood the power of compounding theorem in my 30s. You understood the theorem of power of compounding very early. You applied that also. So when you look back and say that, look, this is something which I would like to change about my investing career, and if I have to write a letter to my son, what would I like to write in that letter? Start early, because power of compounding is about not as much about the rate, but more so about the longevity of the rate. I mean, at 25% is a wonderful rate. I mean, very high rate by any standard. But 25% in 5 years is 3 times. Okay, but 10 years is 10 times. 20 years is 100 times. 30 years is 1,000 times. And 40 years is 10,000 times. And 50 years is 1 lakh times. So a kid who is starting at the age of 20 and he goes till 70, he has a chance to make, even if you start with a lakh, he has a chance to make it 1 lakh crore only out of 1 lakh. So if you have to, let's say, write a letter to your son, how do you think the letter will start? And how do you think the letter will end? Purely your investment wisdom you have to pour in. Yes, so I mean, I would still think that you must understand where you are investing. That understanding has to come to anybody who is trying to, because it's a risk capital. You don't make money everywhere. Like you buy gold, wherever you buy gold, after 5 years if gold price is double, everybody's gold price is double. That doesn't happen in equities. Equities is very patchy, because there are some good companies and bad companies. Time is friend. Compounding will work only in good companies, not in bad companies. And let me tell you, 85-90% of the companies are bad companies. They're not compounded enterprise. Otherwise, the world will become so rich. Everybody can't be compounding. So there are all types of companies, good and bad, great, good, gruesome. So there are good and great companies and there are a lot of bad companies. We have to fundamentally avoid getting sucked into bad companies at cheap prices, because those companies are available at low prices. You put your money, you become long-term investors, and finally they destroy the capital. So we have to, that black hole, and which is very large in the markets, and not only in India, all over the world. You have to avoid that. And that comes only if you understand the economics of why the business will prosper. That you have to understand. I had a pleasure of interacting with Mr. Ramesh Damani in beginning of when I asked him, what is the biggest investment regret of your life? And he said, Nikunj, I've identified a lot of multi-baggers, but I never allocated big capital. What would you say is your biggest regret? Or do you have any regrets? No, I think I enjoyed every bit of it, because see, you evolve. See, you start with zero capital. So you will have a lot of challenges. Zero capital and zero understanding. So everything is a multi-bagger now. Zero capital and zero understanding, you imagine. Still finding the right insurance company with सबके कामना है. हेल्थ तो थोड़ा सा इंडिविजुअल वाला मामला हो गया, किसी की अच्छी हो, किसी की कम अच्छी हो, लेकिन वेल्थ थोड़ा सबका कहते हैं ना कि वो एक जॉइंट टारगेट हो सकता है. तो वेल्थ बनने के जो टारगेट हैं इस साल के, वो कितने पूरे होने की संभावना है इस बार? पैसे तो बनेंगे ही. ये शेयर एक ऐसी जगह है जहाँ पैसे तो बनते ही हैं. ये आपका है ना, मुझे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है हमेशा. मतलब आपको मैं भले 10,000 की निफ्टी में बुलाऊं, 12,000 पे बुलाऊं, 8,000 पे बुलाऊं, लेकिन आपका वो जो एटीट्यूड है एकदम पॉजिटिव कि पैसे तो यही बनेंगे. पैसे बनेंगे यहीं और बनते ही यहीं हैं. मैं कल एक कंपैरिजन देख रहा था, मतलब 5 साल, यार ये सब 2-3 4 मैंने पूछे 5 साल देखे क्या हुआ करके. ये सरकार के 4 5 साल हो रहे हैं. लेट्स लुक एट 5 इयर्स, क्योंकि 14 जो दिसंबर था उसमें मोदी साहब का ऑलमोस्ट मूड बन ही गया था आने का. तो वहां से आप 5 साल देखे हैं तो इंडेक्स है जो आपका निफ्टी या सेंसेक्स है, वो करीब 11.5% दिया रिटर्न. 11-12%, एक्चुअली 12 से 13% रिटर्न दिया है. एंड डिविडेंड उसके ऊपर से, सो करीब मेरे ख्याल टोटल रिटर्न मस्ट बी अबाउट 13.5%. आपका गोल्ड इज फ्लैट, neither up nor down, same. मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ाए कि नहीं, इक्विटी सालों साल वाला गेम है, 1 साल या 6 महीने के झटके तो लगते रहेंगे. देखिए, हम तो ब्रोकिंग 87 सालों के, 31 ईयर्स. सो वी आर एक्चुअली स्टार्टेड, मतलब हार्डकोर ब्रोकिंग से हमने कैरियर चालू किया है. सो हमने देखा कि हर तरह का मार्केट आता है. मतलब आप बुल मार्केट्स आते हैं जिसमें मार्केट बहुत इरेशनल हो जाता है, जैसे 92 का मार्केट है और 2000 का मार्केट है, 2007 का. We are dumb money. We quit our day job. तेजी मार्केट 2-3 साल 4 साल पागल की तरह तेजी होती है, और तेजी आपको समझ में आती है कब आने वाली है. ये बात ये है कि नोटिस देके नहीं आती तेजी जी. तो अभी अच्छा, बीच बीच में करेक्शन भी होते हैं, कभी कभी बहुत डीप करेक्शन भी होता है. तो जो अभी जो चल रहा है 2014 से जो चालू हुआ 2017 तक, आपने बहुत मजा किया. 3 साढ़े 3 साल ऑलमोस्ट पैसे 3 गुना हो गए जी. 10 का
28, 29, 30 रुपये ऐसा हो गया, 25, 2.5 गुना तो हो ही गया सबका। अब उसके बाद जो है थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है, मतलब ये जो 2018 और 19 का जो साल है, ये थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस है। एंड ये सब ब्रोकर्स को समझ में आता है, जितना जो फैटर्निटी है इनको ये बात समझ में आता है कि हर साल जैसा नहीं हो सकता है जी। सो थोड़ा सा रुकना भी पड़ता है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। एंड बाजार और बिजनेस का ट्रेंड भी बदलता है, नए अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं। तो जो पिछले साल आप लोगों ने इम्पैक्ट क्रिएट किया था एक छोटे निवेशक के बीच, और उस तरह से रिटर्न्स भी कमाए, हमने देखा 3-4 गुना लोगों के पोर्टफोलियो हुए। अब वो रिटेल निवेशक भी खुद घबराने लगा है, क्योंकि जितना शायद एक स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने कमा कर दिया उतना अब नहीं दे रहा है। जितना श्री इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले साल भागा था अब बिल्कुल हिल नहीं रहा है, या फिर उससे ज्यादा आधा हो गया, 1/4 हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या कहना चाहिए कि ये जो झटके लगे हैं उनको जल्द से जल्द पचा लें, या फिर चुपचाप बैठे रहें, जो आप लोगों की थीम भी है बाय राइट एंड सिट टाइट, क्या उसी फेज में है? देखिए, बाय राइट सिट टाइट इज द ओनली वे टू गो, ओनली वे टू मेक लॉट ऑफ मनी। क्योंकि देखिए, कंपाउंडिंग जो करेंगे आप, पैसा कंपाउंडेड से बनने वाला है। आप एक बार 1 का 3 हो गया और 3 का 1.5 हो गया, उसमें पैसे नहीं बनने वाले। पैसे बनने वाला है 1 का 10, लेकिन 1 का 10 जो है आपका एक बार में नहीं होना है, 1 साल में नहीं होना है, वो होगा 10 साल ही लगेगा उसका। किसी को 8 साल लग सकता है, किसी 6 साल लग सकता है, लेकिन वो 8-10 साल लगने वाला है। और 1 का 10 बहुत प्रेम से बनने वाला है, ये बात भी पक्का है। और हम पैसे बनाएंगे, वो क्या 10 साल में बनेगा या 8 साल में बनेगा, वो देखने वाली बात है। सो बट देन उसके लिए बाजार में कमिटेड होना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट बी इन एंड आउट। तो ठीक है, मैं समझ में आ रहा है कि ये बाजार जो थोड़ा सा डिप्रेस मार्केट है, थोड़ा चैलेंजिंग है, इंडेक्स ऑल टाइम हाई है, लेकिन सबके पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई नहीं है, वहाँ से 15-20% नीचे, वही पेन पॉइंट है ना। ऑन द होल आई हैव सीन कि इट इज़ नॉट अ बैड एनवायरनमेंट। इट इज़ अ डिसअपॉइंटिंग रिटर्न इन लास्ट 6 months, बट इट इज़ नॉट अ बैड एनवायरनमेंट। इसको मंदी नहीं बोलते, मतलब ये खराब है, मतलब, लेकिन इसको मंदी की शुरुआत भी नहीं आप बोलेंगे, नहीं, मतलब नहीं, ठीक है, मतलब देयर इज अ लो रिटर्न काइंड ऑफ सिचुएशन, लेकिन आपने बहुत पैसे कमाए 3 साल में, तो थोड़ा शांति रखें। आप पोर्टफोलियो को एग्जामिन करें कि भाई आप में कोई गलत चीज़ तो नहीं है। गलत चीज़ है उसको थिंक अबाउट इट, व्हाट यू वांट टू डू, वेदर यू वांट टू सेल, यू वांट टू बाय समथिंग एल्स। बट और ये प्रॉब्ली ये समय है कि आप कुछ ना करें, आप एक्चुअली जाके हॉलिडे करें। आप 1% आप पोर्टफोलियो बेचें, यूरोप घूमो, जो अच्छा लगता है वहाँ जाओ आप, but don't do too much of activity in the portfolio. This is not the time to unnecessarily act, because market is irrational. Irrational market में आप मतलब यानी जाके आप कुछ भी करेंगे, मतलब यहाँ पर भी ऐसा मार्केट है 5 का पी वाला 4 का हो रहा है और 40 का पी 44 हो रहा है जी। तो इसमें इसमें मतलब रोज का एक्टिविटी इज नॉट गोइंग हेल्प। ये जो 40 का 44 आप कह रहे हैं कि हमने देखा है पिछले 6 महीनों में जो अच्छा है वो बहुत अच्छा हो गया, जो गंदा है वो तो कचरा हो गया। पर ऐसी स्थिति में जो दुविधा होती है, क्या हम उस अच्छे के पीछे जो महंगे लगने लगे हैं उनके पीछे भागे या फिर चुपचाप बैठे रहे? क्योंकि कई सारी बजाज फाइनेंस, फिनसर्व जैसी कहानियां होंगी, TCS जैसी कहानियां होंगी जो पहले लोग देखते नहीं थे, अब उसके पीछे हर रोज हाथ धो के बैठे हैं कि ये जब टूटेगा तब मैं लूंगा, और हर गिरावट पर लोग ले रहे हैं। तो जो कैपिटल प्रोटेक्ट करने की कोशिश में इन दिग्गज स्टॉक्स को चेज किया जा रहा है, वो रणनीति काम करेगी? कभी भी आप स्टॉक को चेज करेंगे तो आखिरी में आपको थकना पड़ेगा, आपको नहीं बनेंगे पैसे उसमें ऑप्टिमल। आपको सी यू हैव टू गो बाय योर ओन फिलोसफी कि भाई आपके लिए क्या वैल्यू है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ मेकिंग मनी। आप पिछले 10 साल में आप कैसे पैसे कमाए, वही तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। बाजार डजंट हैव मेमोरी, बाजार को कुछ नहीं मालूम, मतलब उसको घंटे तक भी मेमोरी नहीं कि पिछले घंटे क्या किया उसने, वो लगा हुआ काम पे, वो रोज सवेरे खुलता है अपने हिसाब से काम करता है वो। आप लोग के पास मेमोरी है, हमारे पास मेमोरी है कि मैं यहाँ इतने में खरीदा था, इतने में बेच दिया, मेरा 10 करोड़ का पोर्टफोलियो था 5 करोड़ हो गया, ये सब आपकी मेमोरी है, बाजार को कोई मतलब नहीं। तो यू हैव टू कीप डूइंग योर वे कि भाई आपको क्या समझ में आता है, क्या चीज काम करता है। एंड just because market is doing slightly differently today, you don't change your portfolio strategy, otherwise आप कहीं नहीं रहेंगे, एकदम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप बेसिकली कह रहे हैं आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ना बदलें? मैं तो नहीं बदल रहा हूँ, बल्कि उसको और टाइट कर रहा हूँ जैसे मैं करता था उसको। हाँ, जब आप कहते हैं टाइट कर रहे हैं तो थोड़ी तो साफ सफाई हो रही होगी। साफ सफाई मतलब सी, यदि मान लो कुछ चीज गलत है और उसको पीछे भी हमने मतलब मान लो ओवर स्टे किया है, उसके कारण तकलीफ पाई है, तो वो यदि आज समझ में आता तो आज मैं आज के आज कर डालूंगा, यू नो। लेकिन इनफैक्ट आई विल रीडेडिकेट माई सेल्फ, यदि मान लो मेरे पास 20 कंपनी है और आज पोर्टफोलियो में सब देखते देखते 25 हो गई, आई वुड रादर ब्रिंग इट टू 20 अगेन। हाँ, उस टाइप का
दैट इज माई स्ट्रैटेजी कि मेरा फोकस स्ट्रैटेजी है। और यदि आपका डिफोकस स्ट्रैटेजी है, मतलब आपको 50 कंपनी चाहिए और मान लो 40 हो गए, आप जाके 10 कंपनी खरीद लिया, मेरा ये कहने का है, स्टे टू योर गेम। जी, लेकिन आपने इनफैक्ट ये लगातार एम्फसाइज किया है कि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके पास सिर्फ बैंक हो या फिर सिर्फ ऑटो कंपनियां हो। इस तरह के मार्केट में वो डाइवर्सिफिकेशन का कोई रामबाण है क्या? डाइवर्सिफिकेशन ही अपने आप में रामबाण है ना। देखिए क्या होता है कि इकोनॉमी में बहुत सारे बिजनेसेस हैं, जैसे एक बैंकिंग फाइनेंस है, बैंकिंग फाइनेंस के अंदर भी आपके पास बैंक्स हैं, NBFCs हैं, इंश्योरेंस है, एसेट मैनेजमेंट है, ब्रोकरेजेस हैं, तो सब तरह के BFSI में स्पेस है, इंश्योरेंस है, जनरल इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है। सो आपको क्या चीज़ समझ में आता है? जैसे मेरे को बैंक समझ में आता है, लेकिन इंश्योरेंस उतनी पकड़ नहीं है जी। तो लेकिन इंश्योरेंस का प्रॉस्पेक्ट बिग पिक्चर बहुत तेजी लगता है, लेकिन जब आप बैलेंस शीट पढ़ने जाते हैं तो बैलेंस शीट को समझ नहीं आता। यस, मैं उदाहरण हाँ, नहीं सही है, क्योंकि लोग नहीं समझते कि प्रीमियम कितना बढ़ा है घटा है, उसको कैसे देखें, वो कैसे समझा करके। अच्छा, आप अगले 20-25 साल के लिए लिख रहे हैं तो उसका करंट वैल्यू कैसे निकालने का, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, वो क्या बताते हैं और क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, इज इट एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग, सो हाउ डू आई एक्सट्रापोलेट। तो ये मेरे दिमाग में नहीं बैठता उतना है, लाइक एनी अदर BFSI। मैं अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई करूँगा, मैं थोड़ा इंश्योरेंस में कम रखूंगा, बैंक्स में ज़्यादा रखूंगा, लाइक दैट। मेरे को 2 व्हीलर समझ में आता है तो मैं 2 व्हीलर 10% रखूंगा, मेरे कार समझ में आता है अनदर 10% रखूंगा, लेकिन मेरे को कोई पर्टिकुलर बिजनेस समझ में नहीं आता है, आई वुड स्टे अप। We are dumb money. We quit our day jobs to do this. Still in my portfolio in 20-25 companies, I will have 7-8 businesses which I think I understand. तो जब भी, तो उसमें क्या होगा, 7-8 बिजनेस में 1-2 बिजनेस हमेशा पिटे हुए रहेंगे, लेकिन हमको मालूम है ये पिटा हुआ आज है, लेकिन अगले साल इसका सही होने वाला है। तो मैं वो 2 कंपनी चुपचाप बैठ रहूंगा, पढ़ेंगे, मतलब रोज 10%, 5% ऊपर नीचे होगा, लेकिन हम बैठ रहेंगे वहाँ पर, लेकिन 5 जो है अच्छे चलते रहेंगे। एक चीज जो आप कह रहे हैं कि अच्छी क्वालिटी की कंपनी को चुने, इस समय के माहौल में आप सबसे ज्यादा तवज्जो किसको देंगे, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को या फिर जो गवर्नेंस के इश्यूज हाल फिलहाल कई कंपनियों में आए, दिग्गज कंपनियों में देखने को मिले, छोटी कंपनियों में देखने को मिले हैं, क्या इस 3-4 पैरामीटर्स होते हैं कंपनी की क्वालिटी, आगे कितनी लंबी चलेगी, मुनाफा कितना कमाएगी, गवर्नेंस को आप इस समय कितना तवज्जो देंगे रामदेव जी? टेरिफिक बिजनेस रन बाय टेरिफिक मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपके पास क्लियर क्राइटेरिया होने चाहिए, हाउ यू से इट्स अ गुड बिजनेस एंड हाउ यू से इट इज अ गुड मैनेजमेंट। ओके, जैसे मैनेजमेंट में क्या देखते हैं हम कि भाई वेदर देयर इज इंटीग्रिटी, फर्स्ट थिंग इज वेदर इज इंटीग्रिटी अबाउट, इज देयर एनी डाउट इन द इंटीग्रिटी ऑफ द पर्सन, सेकेंड डज ही हैव कॉम्पिटेंस ऑफ व्हाट ही इज डूइंग, कि आपका दिया हुआ बिजनेस है तो बैठा दिए गले में, तो that doesn't guarantee him to be great in that particular business. Third, does he have that mindset जी कि भाई यहाँ से 1 का 10 करने का मेरे को, जब मैं 10 साल के लिए बैठा हूँ, 10 गुना के लिए बैठा हूँ, इस बंदे को बोलता है डबल कर लूंगा तो बहुत खुश हो गया करके, तो काम नहीं बनना है मेरा। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, देयर इज अ इंटीग्रिटी, देयर इज अ कॉम्पिटेंस एंड देयर इज अ पैशन। वो तीनों चीजें, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पास हो गए, हम तो तभी पास होंगे जब मैनेजमेंट डिलीवर करेगा। सो वी आर बेटिंग ऑन हिम, वी आर स्पेक्युलेटिंग ऑन हिम, एंड वो डाइवर्सिफिकेशन में ये भी एक फायदा है कि भाई आपने अच्छा बिजनेस खरीदा, अच्छा मैनेजमेंट खरीदा, रीजनेबल प्राइस में खरीदा, दैट इज अ ट्रायंगल गेम ऑफ द एंटायर इन्वेस्टिंग। अब उसमें तीनों में कुछ भी गलती हो सकता है, यहाँ से गेम चालू होता है, हमने आज खरीद लिया, अभी आई डोंट हैव ऑप्शन टू गेट आउट, I have say bought 100,000 shares of particular company. Now the game starts. Now the business can go bad because government can happen. So there can be a problem because of that. Oil price can go up and down, and then business prospects can change. आपका व्यवहार बाजार में या अपने कस्टमर के साथ कितना संतुलित होता है खराब समय में भी, वो बहुत जरूरी है। आप यदि अच्छे टाइम में ईमानदार हैं और खराब टाइम में बेईमान हैं, फिर वो खत्म है, फिर वो आप बेईमान ही रहोगे। आपकी सही पहचान तभी निकल कर आती है जब आप बुरे दौर से गुजरते हैं। अब क्योंकि हम बुरे दौर से गुजर रहे हैं अब रिटर्न्स के लिहाज से एटलीस्ट, आपको क्या लग रहा है, इससे शायद निवेशकों को बढ़िया मौका नहीं मिलेगा अगर आपने शायद 2017 की रैली मिस कर दी है या फिर उसमें थोड़े पैसे कमाए हैं, अगर इन लेवल्स पर बाजार मिल रहा है, इफ नॉट द इंडेक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदना शुरू करें? देखिए, ये बहुत सस्ता मार्केट नहीं है, बट आई एम गेटिंग कमिटेड एवरी डे, बिकॉज मेरा फर्म बिलीफ है द बेस्ट टाइम टू बाय इज व्हेन यू हैव द मनी एंड बेस्ट टाइम टू सेल इज व्हेन यू नीड देम। FIIs तो बाजार से पूरी तरह से नदारत है, अब तक जो भी पैसा बना है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन